everyone, welcome dear students on my YouTube channel. Today I am going to discuss question answers of chapter 5 of class 5, that is food and health. So let us begin with the fill in the blanks. First one is, a disease is any defect or abnormality found in the body. Second is, children in the age group of 6 months to 3 years often suffer from protein carbohydrate deficiency disease. Third is, minerals are present in small amounts in our body. Fourth is, the disease that causes enlargement of glands in the neck is known as goiter. Fifth is, the disease that gets spread through insects, air, water and soil are known as communicable diseases. Now match the following. Anemia. अनीमिया आयरन की कमी से होता है, इसीलिए उसे आयरन से मैच करेंगे. नाइट ब्लाइंडनेस विटामिन ए की डिफिशियंसी से होता है. इसी तरह से स्कर्वी विटामिन सी की डिफिशियंसी से होता है. ग्वाइटर आयोडीन की कमी से और बेरी विटामिन बी की कमी से होता है. सो वी विल मैच द आंसर्स विद द करेक्ट वंस. नाउ टिक द करेक्ट ऑप्शन. Hemoglobin contents become less when a person is suffering from anemia. The answer is anemia. Second is, a person having swollen and bleeding gums might be suffering from scurvy. The answer is scurvy. Third is, germs of common cold spread through air. Fourth is, deficiency of proteins and carbohydrates in the diet of a small child can lead to improper growth of the body. Legs become bow-shaped due to deficiency of vitamin D. विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है और रिकेट्स में जो पेशेंट है उसके लेग्स बो शेप्ड के हो जाते हैं. Answer the following questions in brief. फर्स्ट इज स्टेट द टू मेन कैटेगरीज ऑफ डिजीजेज. डिजीजेज के टू मेन कैटेगरीज क्या हैं? द आंसर इज द टू मेन कैटेगरीज ऑफ डिजीजेज आर कम्युनिकेबल डिजीजेज एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज. सेकेंड वन इज राइट टू सिम्टम्स ऑफ डिजीज बेरी बेरी के दो सिम्टम्स लिखने हैं. द आंसर इज टू सिम्टम्स ऑफ बेरी आर extreme weakness and paralysis of body parts. Third question is, name any two diseases that are spread through the bite of mosquitoes. मच्छरों के काटने से कौन सी दो बीमारियां फैल सकती हैं? The answer is malaria and dengue. Fourth is, a girl finds it difficult to see in dim light and has dry and scaly skin. एक बच्ची है जो कम रोशनी में नहीं देख पाती है आसानी से और उसका स्किन ड्राई एंड स्केली हो गया है. वो उसे कौन सी बीमारी है? द आंसर इज शी माइट बी सफरिंग फ्रॉम नाइट ब्लाइंडनेस. आप जानते हैं कि नाइट ब्लाइंडनेस विटामिन ए की डिफिशियंसी से होता है और उसके कारण डिम लाइट में दिखाई नहीं देता है और स्किन भी ड्राई एंड स्केली हो जाता है. नाउ क्वेश्चन 5. Why should we not allow water to stagnate around our homes? हमें अपने घर के आसपास पानी जमा क्यों नहीं होने देना चाहिए? The answer is we should not allow water to stagnate around our homes because stagnant water is the breeding place of mosquitoes. हमें अपने घर के आसपास पानी को जमा नहीं होने देना चाहिए क्योंकि जमा हुआ या रुका हुआ पानी मच्छरों के पनपने का कारण होता है. Long answer questions. How does calcium phosphorus deficiency affect our body? कैल्शियम फॉस्फोरस की कमी से कौन सा असर होता है हमारे बॉडी पे, उसका क्या इफ़ेक्ट होता है? द आंसर इज कैल्शियम फॉस्फोरस डिफिशियंसी causes weak, soft and fragile bones. Due to it, the teeth become weak and lose their shine and whiteness. Second is, suggest some measures that can help us to prevent the occurrence of deficiency diseases. The answer is, the deficiency diseases can be prevented by adopting the following measures. deficiency diseases को
होने से रोका जा सकता है अगर हम कुछ बातों का ध्यान रखें, जैसे वन शुड टेक अ बैलेंस्ड डाइट कंटेनिंग ऑल टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स। हमें हमेशा संतुलित आहार खाना चाहिए जिसमें सारे न्यूट्रिएंट्स सही मात्रा में हों। सेकेंड इज़ वन शुड फॉलो गुड फूड प्रैक्टिसेस एंड हैबिट। हमें खाने की अच्छी आदतों को अपनाना चाहिए। थर्ड इज़ चिल्ड्रन मस्ट बी गिवन एडिक्वेट अमाउंट ऑफ मिल्क, मिल्क प्रोडक्ट्स एंड एडिशनल फूड आइटम्स लाइक जूसेस, सॉफ्ट बॉइल्ड राइस एक्सेट्रा। छोटे बच्चों को दूध के साथ साथ सॉफ्ट बॉइल्ड राइस एंड जूसेस जैसी चीज़ें भी देनी चाहिए। 6 महीने का बच्चा हो जाता है, उसके बाद उन्हें दूध के साथ कुछ एडिशनल फूड आइटम्स भी देने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ कैन वी प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ जर्म्स फ्रॉम अ सिक पर्सन टू अ हेल्दी पर्सन। हम जर्म्स के स्प्रेड को सिक पर्सन से हेल्दी पर्सन से तक होने को कैसे रोक सकते हैं? द आंसर इज वी कैन प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ जर्म्स फ्रॉम सिक पर्सन टू हेल्दी पर्सन बाय अडॉप्टिंग द फॉलोइंग प्रिकॉशंस। अगर हम कुछ बातों का ध्यान दें तो बीमार व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति तक इन्फेक्शन नहीं फैलेगा, जर्म्स नहीं फैलेंगे। वे कौन सी बातें हैं, आइए देखते हैं। फर्स्ट इज all the articles and clothes of the infected person should be disinfected. Second is the surrounding must be kept clean and hygienic. Third is one must cover nose or mouth while sneezing or coughing. And fourth is vaccination must be done to prevent diseases like chickenpox, polio, etc. Question 4th is Isha was suffering from chickenpox. Her teacher advised her not to come to school till she has recovered completely. ईशा को चिकन पॉक्स हो गया है और उसकी टीचर उसे एडवाइस करती हैं कि जब तक वो पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाती हैं उन्हें स्कूल नहीं आना चाहिए। ऐसा क्यों? द आंसर इज द टीचर हैज़ एडवाइज सो बिकॉज चिकन पॉक्स इज़ अ कम्युनिकेबल डिजीज़। टीचर ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि चिकन पॉक्स एक कम्युनिकेबल डिजीज़ है। हो सकता है कि उनके विद्यालय आने से यह बीमारी दूसरे बच्चों को भी फैल जाए। क्वेश्चन 5 इज व्हाई आर डिफिशियंसी डिजीजेस कॉल्ड नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस। डिफिशियंसी डिजीजेस को नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस क्यों कहा जाता है? द आंसर इज डिफिशियंसी डिजीजेस आर कॉज्ड ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ सम पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स सो इट डू नॉट गेट ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। डिफिशियंसी डिजीज़ किसी न्यूट्रिएंट की कमी से होते हैं, इसलिए ये किसी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक स्प्रेड नहीं होते हैं। नाउ वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड द स्टोरी फर्स्ट। रजत हैड टू गो थ्रू अ स्लम एरिया व्हाइल ऑन हिज वे टू स्कूल। रजत जब अपने स्कूल जाता था तो रास्ते में एक स्लम एरिया, झुग्गी झोपड़ी का एरिया था। He noticed that some slum children looked weak and pale and were quite inactive. उसने नोटिस किया कि स्लम के कुछ बच्चे बहुत ही वीक और पीले पड़ गए हैं। He did not see them playing or running around like other children of their age. और वह देखता था कि वे बच्चे दूसरे बच्चों की तरह खेलते कूदते हुए नज़र नहीं आते थे। उसने यह बात अपने साइंस टीचर से डिस्कस की। His teacher along with the help of school doctor ऑर्गेनाइज्ड ए मेडिकल कैंप। उसके टीचर ने स्कूल डॉक्टर की मदद से एक मेडिकल कैंप ऑर्गेनाइज किया और नुक्कड़ नाटक की मदद से लोगों को समझाया कि कैसे कम दाम की चीज़ें, सस्ती चीज़ें भी स्वास्थ्य के लिए अच्छी हो सकती हैं। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाई डिड द स्लम चिल्ड्रन लुक वीक एंड पेल। स्लम चिल्ड्रन कमज़ोर क्यों नज़र आ रहे थे? द आंसर इज द स्लम चिल्ड्रन लुक वीक एंड पेल ड्यू टू डिफिशियंसी इन देयर डाइट। स्लम के बच्चे कमज़ोर इसलिए नज़र आ रहे थे क्योंकि उनके भोजन में किसी न्यूट्रिएंट की कमी थी। सेकेंड इज हाउ डिड रजत एंड हिज टीचर हेल्प द स्लम चिल्ड्रन डिस्कस। रजत और उसके टीचर ने स्लम के बच्चों की मदद कैसे की? द आंसर इज रजत and his teacher organized a Nukkad Natika to highlight how some not very costly food items can help those children to improve their health. Now third question is
Suggest the name of food items that are not too costly but are good for our health. कुछ ऐसी चीज़ों के नाम बताने हैं जो बहुत महंगे नहीं होते लेकिन स्वास्थ्य के लिए अच्छे होते हैं. The answer is some food items which are not very costly but are good for health are gram यानी चना, जैजरी यानी गुड़, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स यानी हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे पालक, बथुआ, सरसों या कोई भी साग, and amla and some local fruits. So this was about the question answers. I hope you all understand.